डिस्ट्रिक्ट जज कब बैठेंगे? इज एक्सटेंडेड बाय ए मंथ फ्रॉम टुडे। ठीक है, इसको आज करा लेना। देयर मे बी सम डिले इन सिग्नेचर ऑफ द ऑर्डर रहेगा। अब वो डायरेक्शन वाला पार्ट कर दिया तो बोलते हैं कि ये डायरेक्शन है कि सबमिशन 1-2 करके जैसे किया गया था कर देते तो ज़्यादा आसानी होती। वो मतलब वो ही वांट्स एन एक्सप्लिसिट सॉर्ट ऑफ, आई नो। कर दो, वो कर दो, हम करा देंगे। आई एम सो डीपली and may I अंदर ले लेना। Lordships once again on that judgment. It was wonderful. No need, it is So deeply all. तो आज ही कर देना, समझ लेना हमसे। Serial number 4, Mr. Vyas Mishra. इसमें पिटिशनर नंबर 2 का नाम है राजू, तो राहुल एफ केवल टाइप हो गया, और गांव का नाम है अमरपुरा, तो अमनपुरा एन केवल। कहाँ टाइप हुआ है ये गलत? पिटिशन में, आपके पिटीशन में। तो आपका पिटीशन तो हम नहीं ना करेक्ट करेंगे, आपको ना करेक्ट करना चाहिए था। जब फाइलिंग करते हैं तो देखिए बेल होने के बाद यही डिले होता है। द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज परमिटेड टू मेक नेसेसरी करेक्शन इन द नेम ऑफ द पिटिशनर एंड द विलेज ऑफ द पिटिशनर। पिटिशन नंबर 2, the office is directed to act accordingly and make necessary correction in the header portion of the railway application if required। आकाश कुमार वाले में आप है ना? केवल पिटिशनर नंबर 2 का। अब वो सब जो करना है। यस, नेक्स्ट केस सुधीर यादव। Under heading for orders, serial number 5, Mr. Subhas Kumar Jha. यस, व्हाट इज द केस? अर्लियर डायरी कॉल, डायरी कॉल हुआ था, मेरिट पे सबमिट कीजिए। नाउ वेयर इज मिस्टर झा? लॉर्डशिप इसमें डायरी कॉल हुआ था तो ऑफिस नोट में आया, तो दो बार नहीं समझते हैं एक ही बात को। लॉर्डशिप समझ मेरे यहाँ जिस भी हेडिंग में आएगा, यू हैव टू आर्ग्यू योर केस ऑन मेरिट्स। I will not wait for to be mentioned and this and that. If you have the diary, you have a copy of the diary? नहीं है ना, तो घर जाइएगा। Let me see the records. What is your name? Sudhir Yadav. You are named in the FIR? Then what is the requirement of calling for the case diary? Why case diary? अर्लियर आर्गुमेंट। क्या argument? You repeat that argument on merits. Why case diary? Why not this case be decided on the basis of materials available on record today? Dev Narayan Yadav fired hitting Pawan Yadav. Sudhir Yadav fired causing injury to Pawan Yadav. Pawan Yadav is the deceased. Ghanshyam Yadav started to fire indiscriminately. It is further stated the petitioners who are armed with pistol ordered that no one should be escaped. 2 का बेल मिला हुआ है लॉर्डशिप। वही तो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, बेल ऑर्डर पढ़ रहे हैं। वो नॉन जिस पर एलिगेशन नहीं उसको मिला। आप जो ग्राउंड लिया है कि आई वॉज अपियरिंग फॉर सम एग्जाम, whether the IO has verified it, whether you file an application before the investigating officer about your verification of your alibi, whether it has been considered. If it was not considered, whether you approached the magistrate for a direction to the IO and the SP for verification of your alibi. No,
Then पुलिस देकर सो गए आप. Now your alibi will be tested in trial on the basis of evidence which you adduce. The right course should have been that you should have approached the magistrate by filing an application. From reading of the देखो prosecution case मत लिखना, जो लिखा रहे हैं हम लिखना. It has been alleged in the FIR that the petitioner and others have shot the deceased. Stop. There is shot the deceased and the deceased died. Next. It has been submitted by the learned counsel for the petitioner that he has been falsely implicated and on the date of occurrence he was appearing in an examination. Stop. This fact has not been verified by the IO in the case, IO of the case, and charge sheet has been submitted against the petitioner. The petitioner did not take any steps for to press his application, which was not being considered by the IO, and he did not approach the superintendent of police or higher police officials or the learned magistrate for investigation with regard to his alibi. Stop. In these circumstances, the submission of the learned counsel for the petitioner that the petitioner is not involved in the crime is fit to be rejected. The petitioner is said to be one of the assailants of the deceased. In the stop. The two co-accused who have been granted bail, the case of the two accused who have been granted bail is distinguishable from that of the case of the petitioner. The petitioner is also accused in a case of under section 392 of IPC and another case of murder. Considering all the above circumstances, I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. Yes, next. Case number 6, Mr. Vibhakar Kumar. Yes. offences under section Lockset 366A and 4 Act of POXO Act Lockset. POXO Act. What is the age of the girl? 17 to 19 Lockset. What is the age of the girl mentioned in the FIR? FIR में 17 दिया लॉर्डशिप. हाँ. मेडिकल छोड़िए और एलिगेशन आप पर क्या है? एलिगेशन ये लोग शादी के बहाने शादी कर लिया है लोग. शादी कर लिया या क्या है? 164 का बयान भी लॉर्डशिप इसमें है. 124 ऑफ केस डायरेक्ट. एक मिनट. 124 डायरी है आपके पास? 16 वही पैराग्राफ निकाल कर हमको दीजिए. Yes. Who is the petitioner? The boy who is said to have married? Yes, sir. शादी और वो बता रहे हैं कि अब 2 मिनट हमको पढ़ने दीजिए, then argue.
The prosecution story in short is the allegation against the petitioner and other accused in short is that they had abducted the petitioner and the victim girl disappeared, and for that the informant suspected the petitioner and his family members. Next, it has been argued by the learned counsel for the petitioner that एक ही petitioner है ना, that the petitioner is innocent and the petitioner and the girl had an affair and they had eloped and thereafter they got married at Devghar in Baba Baidyanath Dham temple shop. He also submits that during the किस पैराग्राफ में मेडिकल है? और 29 में लॉस In the 24 है। 129 में in the medical examination the age of the girl has been found to be between 17 to 19 years. Considering the aforesaid facts and the fact that the petitioner is in custody since 2/6/2022. 2/6/2022, this application is allowed. The petitioner is granted bail. Next. Serial number 7 file is not available. Serial number 8, Mr. Nitin Kumar. तो रेगुलर 40/20 का जो एलिगेशन है कि Just a minute. हाँ बोलिए क्या है? 406/420 का एलिगेशन है। एलिगेशन है उसकी एक एलिगेशन हम देख लिए, डिफेंस अपना बताइए और उस पर क्या मटेरियल आया है आपके फेवर में ये बता दीजिए। एक तो ये एम्प्लॉय है, वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर 5 लड़के और 4 लड़कियाँ काम करती थी। सभी को जब पुलिस आई सभी को पकड़ करके अंदर कर दी। एलिगेशन है कि 200 रुपया लेके रजिस्ट्रेशन, वो सब हम देख चुके हैं। तो आपका डिफेंस क्या है कि क्यों ये जानते हुए कि चीटिंग इतना बड़ा चल रहा है आप उसमें क्यों काम कर रहे थे? सुपरवाइजर थे? हमको हुजूर ये नहीं ना पता था। वैसे पता नहीं था, आप सुपरवाइजर हैं, लोगों को जो नौकरी देने के नाम पर बुलाया जा रहा है, ठगी का धंधा किया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आया। पढ़े लिखे ठग हैं आप। पेपर में आया था कि हाँ, तो हम भी गए थे वहाँ पर हुजूर, और एक भी मतलब कंप्लेनेंट नहीं आया है सामने में जो कोई कंप्लेन किया हो कि हमारा पैसा ये हो गया। पूरे इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट, और पूरे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है कंप्लेनेंट, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? वहाँ पर डायरी आया था। हाँ, जो भी इसमें मेंशन है डायरी का पैराग्राफ,
वो सब पुलिस ऑफिशियल है, सब ऑफिशियल विटनेस है। कोई भी एक भी नाम नहीं आया उन्होंने आकर के कंप्लेन किया है। बाकी सभी इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट अदर्स। चार्जशीट हो गया। आप पर चार्जशीट हुआ ना, इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग और अगेंस्ट अदर्स। only one person have to be arrested. Hope सब तरीके हो गया। उस सब का बेल हो गया ना, सबका लोगों इन लोगों ने ठगा है। 34,000। 34,000 नहीं है हुजूर, 3 से 4,000 का एलिगेशन है। और हुजूर 34,000 का इन्होंने फॉर्म भरवाया। 34,000 34,000 इंटू 150 तो फॉर्म भराने का, और उसके बाद 200 रुपया, और तो कितना हो गया? 4,000 मैंने, उसके बाद 4500, तो 4500 और फॉर्म भरने का कितना था? 200 और 150, 45, 46, 46, 47, 48, 49, अराउंड 5,000 पर हेड इंटू 34,000 कितना हुआ? 3 से 4 कितना हुआ? कब से जेल में है? 7 महीना करीब हो गया। 7 महीना, ठीक। 17 करोड़। एक मिनट हम कह रहे, ये 34,000 नहीं है, 3 से 4,000 है हुजूर। 3 से 4,000 है जी। तो आप 34,000 कैसे कर रहे हैं? लिखा हुआ जो FIR देखा जाएगा ना हुजूर। हैं? नीचे से 2, 4, 6, 7, 8 लाइन में FIR में, FIR का पेज नंबर कौन सा? 2 है। सेकंड पार्ट का होगा। टाइप में टाइप पेज में कहीं है? टाइप के पेज का इंटरनल पेज 2 पे तो नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट पेज में ही हम- एक मिनट 3.4 है मेन FIR में, देखिए ना, सर्टिफाइड कॉपी में देखिए, 3 से 4,000 ये कर रहे हैं। जी 4 से हाँ हो गया, वेरीफाई करने दीजिए हमको, क्या दिक्कत है? हम आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। 3-4 हजार आपका टाइपिस्ट गलत किया तो 34,000 हो गया। इट इज योर फॉल्ट, यू डोंट रिव्यू योर टाइप्ड कॉपी ऑफ द FIR। यू शुड कंपेयर द टाइप्ड कॉपी बिफोर फाइलिंग इट विद द ओरिजिनल FIR। अदरवाइज तो ये अब कितना हो गया? 4,000 इंटू 4,900, बाकी सब लोग का बेल हो गया। इस 1,96,00,000 को आप डिवाइड कीजिए 11 से, 11 से। इसमें तो मनीष मिश्रा प्लस 10 एम्प्लॉइज, तो कितना हो गया? 17 लाख ना। 15 लाख जमा कर दीजिए। जो 1 मिनट और हम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, क्या है? इसमें कहीं भी नहीं है कि सभी से कुछ से 200 रुपया और कुछ से 1,700 रुपया, ये है हुजूर पूरे इसमें FIR में देखा जाएगा। कहीं भी ये नहीं है कि सभी 3 से 4 आदमी से 1,700 रुपया ही लिया गया है। हम पढ़ देते हैं हुजूर, अगर हम पढ़ लिए, सारा पढ़कर ही आपको सुन रहे हैं। एक दिन पढ़े थे जिस दिन आप नहीं थे, और आपके तरफ से प्रेयर किया गया कि नहीं वो आएंगे तो सुनेंगे। तो आप डिसाइड कीजिए, हाउ मच डू यू वांट टू डिपॉजिट फॉर बेल। इसमें एक और प्रेयर है कि बाकी सभी लोग का होगा। बाकी सभी से हमको मतलब नहीं है। मेरा कॉन्सर्स अलाउ करेगा तो बेल देंगे, नहीं कॉन्सर्स अलाउ करेगा नहीं देंगे। और एक भी हुजूर कहीं भी पूरे इसमें एक भी कंप्लेनेंट नहीं आया है कि मेरे सामने से, ये सब पुलिस का ये किया हुआ है हुजूर। और जो बहस करना है पॉइंट बना लीजिए, और एक बार बोलिए, बार बार नहीं रिकॉर्डिंग करिएगा, बोल दीजिए। डोंट रिपीट, यू मेक योर आर्गुमेंट्स पॉइंट वाइज,
बस उसके बाद हुजूर, और इसमें पनिशमेंट हुजूर अप टू 7 ईयर है, और हुजूर एटलीस्ट हमको 41 का बेनिफिट भी मिलना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। और हमको सीधे हुजूर ये किया गया, कहीं भी ये नहीं आया हुजूर कि टोटल अमाउंट क्या लिया गया। ये फैक्ट है कि हम हुजूर वहाँ पर काम करते थे, ये भी कहीं पर डिस्प्यूट में नहीं है। हम भी सर नौकरी के लिए गए थे, हमको तो ना तो सैलरी मिला, ना कुछ 2-3 महीना भी हुआ ही था हुजूर। वेयर इज योर अपॉइंटमेंट लेटर? लेटर कहाँ हुजूर मिलता है? वो तो आया बोला कि अभी ट्रेनिंग कर लीजिए, फिर हम भी नौकरी के लिए गए थे। ऑर्डर लिखा है? तो हुजूर हमको इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। जाइए बाहर फोन पर लेके आइए, 5 मिनट में हम पास ओवर कर रहे हैं। कल रख दिया जाए। कल कोर्ट नहीं है, टुडे इज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस वीक, और कल के बाद सीधे हम छुट्टी के बाद आएंगे। छुट्टी के बाद heard the learned counsel for the petitioner and the learned APP for the state. Order reserved, put up for orders on बुधवार को, खुलने के बाद बुधवार को लगा दीजिए, तो आप दूसरे बेंच में भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस। Serial number 9, Mr. Pradeep Kumar Sinha. बोलिए क्या है? अरे कल वाला से हमको फैक्ट याद रहता है, आप पहले गला ठीक कर लीजिए। आप चुप रहिए, देख लेने दीजिए। यूएपीए एक्ट है और के AK-47 वाला है ना, आपकी 56 है, AK-56 है। वही FIR में जो है अज्ञात है, जो इनके हस्बैंड को। एक मिनट, अब हमको पढ़ने दीजिए, आपके गला से हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। The prosecution story in short is that the Central Police Forces raided a house and caught the petitioner and Shravan Yadav alias Ranjit Yadav alias Bajaria from their possession one AK-56 rifle and cartridges were recovered. Next, it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that the petitioner is innocent and has been falsely implicated by the police. The recovery is of cartridges of AK-56 from the petitioner, and the AK-56 has been recovered from the possession of the co-accused. Considering the fact that the petitioners from the recovery, I have considered this. The learned counsel for the learned APP has opposed the prayer for bail and has submitted that the petitioner is a Naxalite and he is involved in illegal activities, and therefore the case has been registered
under the various sections of IPC, Arms Act, and the various sections of unlawful UAP Act. Stop. I have considered the submission of the parties. The petitioner and the co-accused, जो भी नाम है, have been found to be involved in Naxalite activities in the jurisdiction of Sergahati subdivision. थाना कौन सा है? इमामगंज है। भदवार पुलिस स्टेशन, which is a hotbed of Naxalism. In these circumstances, I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial court is directed to expedite the trial as both the accused are already in custody. It is expected that the trial of the petitioners is concluded by the trial court within 6 months of communication of this order on day-to-day basis, so that criminals moving around with AK-56, so that persons are deterred from moving around armed with AK-56 rifle in this state. Facts to District Judge Gaya. AK-56 लेके चलिएगा, कहिएगा कि हाई कोर्ट बेल दे देगा। Serial number 10, Mr. चलिए नेक्स्ट। 307 लॉर्डशिप, वो जो बुलाया गया था, हाँ, इंजरी लॉर्डशिप 307 है। Who is the IO? Where is the IO? आया है? चुनाव है, उपचुनाव हो रहा है केसरिया में, सबको ड्यूटी में है और हमने किया था 2 बजे, हमने भी किया था, तो इसके बाद रखा जाए हम वही कर दीजिए। Heard the parties list this case on, कब रखे थे? बुधवार को 21 जून for orders. On that date, the investigating of the officers as directed on 24/5/20 appear along with the records. गर्दनी बाग वाले आए हुए हैं, आइए इधर। कहाँ गए मिस्टर विपिन कुमार? एक बार वो कर दीजिए, सीरियल नंबर 10 9 फाइल दीजिए तो 9 का। क्या वहां पर क्या हो रहा है? ये 8 अरे वही डिसमिस हुआ, वही फाइल दीजिए। क्या है वहां पर? ये नौकरी के नाम पर जो ठगी कर रहे थे, तो ये इनका क्या रोल है? अनिल कुमार भारती नहीं, इससे और पहले क्या? विकास कुमार 8 है। 8 सीरियल 8। हाँ, क्या रोल है? आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, आराम से। नौकरी के नाम पे सर एक अमाउंट किया जाता था सर। हाँ, वो सब तो देख लिए। विकास कुमार सिन्हा बोल रहा है कि हम एम्प्लॉय थे और हमारा रोल नहीं है, हम खुद दुखी इंसान हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। सारे आदमी सर, एक ऑफिस छोटा सा, उसी में सारे आदमी रह के सबको गाइड करते रहते थे सर। ये मैनेजर थे सर, विकास कुमार सिन्हा मैनेजर थे। तो ये नौकरी करते थे कि ये मिले हुए थे, सब एक साथ ही काम कर रहे थे? काम कर रहे थे, उन्हीं के बताए हुए थी पे काम। और वो मिश्रा मिला कि नहीं? मिश्रा सर रेड किए थे सर, छत पर से कूद के नीचे भाग गया सर। पैर वैर नहीं टूटा उसका? तो आप कब पकड़ेंगे उसको, मिश्रा को? तो सर यहाँ से कहाँ? हम जो डेरा लेकर रहता था ना। हाँ, परमानेंट रेजिडेंस कहाँ है उसका?
82 83 क्या हुआ? 83 नहीं, सुपरवाइजर में सर उसमें 41 का दे दिए सर एक को। 41 का दे दिए, उसमें 467 ये सब नहीं लगाते हैं आप लोग? फोर्जरी भी तो करते हैं ये लोग, तो क्यों नहीं आप ऐड कर देते हैं वो सेक्शन? आप जरा एग्जामिन करिए और अगर हो सके तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए एडिशन। 41 नहीं मिलेगा, अगर 41 मिलता है तो उसको नोटिस कीजिए, नोटिस पे अगर नहीं आता है तो फिर अरेस्ट करिए। तो अगले कब है डेट हम लोगों ने रखा है? 21 जून को आप लोग आ जाइएगा। फर्दर हमको उस दिन बताइएगा, उस दिन वो वकील साहब भी रहेंगे। और उससे पहले विकास मिश्रा को अरेस्ट कीजिए और एप्लीकेशन दीजिए वहां कोर्ट पे। हाँ चलिए आइए। नंबर 11 क्या शकील अहमद, इसमें भी यकनपुर आइए। यकनपुर पास ओवर कर रहे हैं, आने दीजिए। यस, नेक्स्ट केस। 12 मिस्टर रंजीत कुमार सिंह। यस, अरे उनको कहिए तुरंत बुलाए। आई मे नॉट बी अवेलेबल एट 11। हाँ बोलिए, क्या है? 107 का केस है जो कल सुना गया था। क्यों एडजॉर्नमेंट हुआ था? हुआ था कि हम पिटिशनर को कॉस्ट करेंगे 25,000, चूंकि हाँ हुआ तो कर रहे हैं कि नहीं? हजूर प्रेयर है कि 5,000 कम कर दिया जाए। गोली मारिएगा, इलाज उसका होगा और उसको कहिएगा कि 5,000 कम, 25 कम है। The learned counsel for the petitioner has at the outset has submitted that he is ready to bear the partial cost of the treatment of the injured and has offered to pay rupees 25,000 to the injured. Next, the allegation against the petitioner is that he had shot the injured. हमारे अगेंस्ट में दूसरे The allegation against the accused persons is that they have shot the injured. Next, it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that the petitioner is in custody since 4/9/22 4/9/2022 and the specific allegation of shooting the deceased, the injured is against अदर को एक्यूज्ड। क्या नाम बताइए? चट्टू लगाए हुए। अरे नाम बताइए। रजनीश कुमार। Against Rajneesh Kumar. Next, considering the period of custody, this application is allowed such and such. The amount of rupees 25,000 shall be deposited in the court below by way of demand draft in the name of the informant, and the court below is directed to release the demand draft in the validity period to the petitioner, to the informant. The next, it is however observed that deposit of payment of the amount is not an admission of guilt by the petitioner. With the aforesaid observation and direction, this application is allowed. सीरियल नंबर 13 मिस्टर नरेश चंद्र वर्मा। सोच रहे थे लेकिन अब हो गया, वो SHO से हम बातचीत कर लिए और अगले डेट पर। थोड़ा सा 2 मिनट समय चाहिए था। डायरी जो है सो जो 627 के बदले 227 आ गए, तो रास्ते में आ जा रहा था। किसमें? इसमें हमारे पास डायरी है। 10-15 मिनट में हम। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक, पास ओवर करिए। यस, नेक्स्ट। नंबर 14 मिस्टर विनय कुमार सिंह। व्हाट इज द केस? का केस क्या मिला, कहाँ से मिला? पटना में मिला। आपका क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या है? क्रिमिनल इंसिडेंट क्या है? 395 का है। पत्रकार नगर। You are committing dacoities in Patna and you have concentrated in पत्रकार नगर. वो एक्यूज का बेल हो गया है। That is not a ground. You are a criminal committing dacoity in Patna. 395 का है जो। हाँ वही देख लिए अरुण बाबू, थोड़ा हम भी देख लेना। इनको भी तो लगना चाहिए कि इनकी सुनवाई हो रही है। आ रहे हैं, इसके लिए बुलाए थे क्या?
आइए, सारा पटना आज ही आएगा क्या? नेक्स्ट, सीरियल नंबर 15 मिस्टर आपका क्या है योगेश बाबू? रेगुलर बिल है उर्दू ऑफेंस सेक्शन क्या है? 376 354, लेकिन एक तो दिया गया है जरूर 1 साल से फिजिकल रिलेशन बाप ने केस किया है हमारे बेटी के साथ 17 साल, मेडिकल है 18 से लड़की का उम्र फादर ने क्या बताया? 17 का है और है मेडिकल छोड़ दीजिए, मेडिकल साल का हम कंसीडिंग के 17 ही साल है। तो कल से आज क्यों आया? तो कुछ जजमेंट साहब है हुजूर बॉम्बे का बिल नहीं, जजमेंट तो दे दीजिए, लेकिन ये these judgments are not applicable to your case, as in the second part of the 164 statement. Even after marriage you tried to blackmail the girl. You got married to another girl and you tried to blackmail her by showing the photographs. वह एस्पेक्ट रिजेक्टेड वही एस्पेक्ट अब आपके खिलाफ है। एफआईआर में हुजूर ये एलिगेशन नहीं है। नहीं है ना एफआईआर, व्हाट इज द लॉ? ना ठीक है, उस पर हम बात सही है, लेकिन पेटेंटली लगता है कि इम्प्रूवमेंट। You have justified your appearance. You have appeared for 2 days, and now let me pass the order. इसमें भी हुजूर बॉम्बे वाला केस में बॉम्बे वाला नहीं, इसमें कोई केस नहीं लगेगा, इसमें मेरा ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। आपके केस के लिए अपना फ्रेश ऑर्डर। उसमें यंग लोग है हुजूर। हाँ, यंग लोग है तो कैरियर तो बचा ही नहीं। कई जजमेंट he will start his career in jail, Beur jail. He will continue. यंग है, आई मीन होल कैरियर विल बी रूइंड। यंग कोई बुजुर्ग रहता है तो बात है। पिटिशनर का भी पैरा 4 में प्रोसिक्यूशन केस इसी ग्राउंड पर हुजूर बेल कुछ दिया गया है कि साहब यंग लोग है। I have been granting bail daily to persons who have committed mistake, but persons who have been exploiting girls and tried to blackmail them. I will not give any chance to those kind of persons. Now let me dictate the order. अब आप बैठ जाएं, आप सीनियर सिटीजन हैं। लिखिए, लिख दिए, उसके बाद लिखो। Mr. Yogesh Chand Verma, learned senior advocate, vehemently has argued that the present is a case of consensual sex and therefore the petitioner deserves bail. He has taken this court to the statement of the victim girl recorded under section 164 CRPC and has tried to impress upon this court that from reading of the statement under 160 of the girl, it appears that it is a case of consensual sex. Stop. The learned APP, who appears? Learned APP, please. Akhileshwar Dayal, where is he? आप क्या बोलते हैं? The learned APP for the state has opposed the bail application of the petitioner and has submitted that this is a very serious case. Stop. I have considered the submissions of both the sides. From the FIR, it appears from the FIR and the statement of the victim girl recorded under section 164 CRPC, it appears that the petitioner had sexually exploited a minor girl, and after the petitioner got married, he again tried to blackmail the victim by threatening her to make the photographs of their intimate moments public. In my opinion, this petitioner doesn't deserve bail. This application is dismissed. The trial court is directed to conclude the trial at the earliest. As it has been submitted that the petitioner is in custody for more than a year.
में भोला भाला आदमी बहुत शिकार भी हो रहा है। कोई शिकार नहीं होता है। मिस्टर अभिषेक कुमार। हाँ, यस, नेक्स्ट। सीरियल नंबर 16 मिस्टर अभिषेक कुमार। हु अपीयर्स? क्या है आपका? क्या है? 392, 302, इससे कम में आजकल आप नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज द एलिगेशन अगेंस्ट यू? गजाधर साहब। इसमें है कि इन्फॉर्मेंट के बड़े भाई हैं कमलेश देसाई, जो डिसीज्ड है केस के, और कहा जाता है कि इन्फॉर्मेंट की भाभी यानी डिसीज्ड की वाइफ से इनका इलिसिट रिलेशन था। यस। पिटिशनर 60 वर्ष के हैं, 60 ईयर्स ओल्ड, और सस्पिशन इनके खिलाफ है कि कहते हैं कि इन्होंने इनकी भाभी के साथ ये मिल के इनके भाई को मार दिया। What is the evidence against you? What about case diary? What about case diary? You have the case diary? बस नहीं रही, केस डायरी मांगी गई थी। मांगी गई है, आ गया है केस डायरी? नहीं आया है, आ गया है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो देख रहे हैं हमको। लेट मी सी द केस डायरी, लेट मी सी द। अरे रुक जाइए, केस डायरी हमको देखने दीजिए। और कुछ पोस्टमार्टम में जो देखते हो एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, लगता है कि सुसाइडल डेथ है इनका। लिखिए। और द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशन prosecution case. It has been submitted by the learned counsel for the petitioner that the petitioner has been falsely implicated and named only on suspicion. He further submits that the deceased, from the post-mortem report, it will appear that the deceased has died due to hanging. Next. The learned APP has opposed the prayer for bail and has submitted that witnesses have supported the crime and the allegation have supported the allegation against the petitioner. He further submits that witnesses have said that the victim had seen his wife in a compromising position with the petitioner, and thereafter the petitioner and
the wife of the deceased, victim की जगह deceased करता है, had killed the deceased. I have gone through the case diary available on record. In the case diary, witnesses have supported the prosecution case. They have said that on the date of occurrence, the petitioner had visited the deceased's house and was seen in a compromising position by the deceased, upon which he has been killed by the petitioner and the co-accused, who is none other but the wife of the deceased. The post-mortem report says that the deceased was killed due to strangulation, asphyxia. The post-mortem report shows that ligature mark of size was there on the neck of the petitioner along with abrasion mark. At this moment, the opinion of the doctor in these type of cases cannot be conclusive as to whether the death was suicidal or homicidal. I am not considering the facts of the case. I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. Bill number 17, Mr. Prashant Kumar. Yes. क्या है? 376, section 4/12 of POCSO. This Age of the girl? 15 years, my lord. I be permitted to place the FIR, which is. I will read the FIR. Don't read it. You have the 164 statement? आ गया है. Don't worry. I'm reading the FIR. No, don't read. I am reading. I know Hindi. हाँ बोलिए क्या है? I have gone through the FIR. You make your submissions. I don't read everything. This case has been filed just to pressurize the petitioner, my lord. Petitioner is himself at 20 years of age. First of all, my lord, the date of occurrence is of 8/3/2022, my lord, and FIR has been lodged after 1 month, more than 1 month. That is on 12/4/22. The incident happens, my lord,
Then the girl remains missing for the whole night. There's no complaint, no FIR or nothing, my lord. Thereafter, my lord, several times panchayati has been held, and even in the panchayati, the panchs are asking to pay the boy 2 lakh rupees and 1 vehicle, my lord. This would, if this would have been true, my lord, then there should have been no demand by the panchs. Anything more? No, my lord. क्या गणेश बाबू? The allegation is that petitioner is said to have committed rape upon the minor daughter of the informant lordship, aged about 15 years old lordship, and on the intervention of their this her minor and Panchayat several. वो सब छोड़ दीजिए ना, और क्या है आपका? The marriage was ultimately denied by the petitioner. शादी करने के लिए कहा गया, लेकिन शादी करने से इनकार कर दिया। रेप का एलिगेशन 3 बार पंचायती हो गया ना, आप बहस कर लिए, वो बहस कर लिए, बाकी तो रिकॉर्ड हम देखे ही, 3 बार पंचायत, 5 बार पंचायत का। Heard the learned counsel for the petitioner and Sri Ganesh Prasad Singh, learned APP for the state. The prosecution case in short, next. The learned counsel for the petitioner submitted that this is not a case of rape but of consensual sex by the petitioner and the victim, and allegation may be false as the victim has not got married to the, as the petitioner did not marry the victim. Mr. Ganesh Prasad Singh opposes the prayer for bail and has submitted that a minor girl has been raped by the petitioner, and thereafter various kind of defenses are being taken. Stop. Next. From reading the FIR and the statement made under Section 164 of CRPC by the victim girl, it appears that the victim is from the records, it appears that the victim is a minor. Stop. The victim has been raped by the petitioner. Stop. The villagers tried to intervene so that the case is not registered, and they tried to fix the marriage of the petitioner and the victim, which has not happened. This cannot be a ground. This delay has happened because of the intervention of the village people, and this cannot be a ground for grant of bail to the petitioner. When the petitioner has been found to has committed rape of a minor, he has to suffer the consequences. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. One more submission. This petitioner himself is a minor. 20 साल का है, मैरिजेबल एज नहीं है, इसीलिए इसी ग्राउंड 20 साल का माइनर नहीं होता है ना, 18 साल का। ठीक है, तो ये सब जाइए, रेप करते वक्त ये सब नहीं सोचे थे, हो गया ना। आई हैव पास माई ऑर्डर, नाउ यू कैन मूव टू अदर कोर्ट्स। नेक्स्ट, Serial number 18, Mr. Sanjay. Who appears?
$302 also. अगम कुआं, अगम कुआं, अगम कुआं, अगम कुआं, अगम कुआं, अगम कुआं, रामकृष्णा नगर, रामकृष्णा नगर, सोसराय. His area of work is Patna. अरविंद कुमार एलियस भीम यादव अभी रहते हैं बहादुरपुर कॉलोनी में. इनका मुख्य पेशा लूटना है और मर्डर करना. प्रोसिक्यूशन केस लिख लेना. उसके बाद इट appears that the petitioner is involved in committing murders, डकैतीज, and others extortion in the town of Patna. He is accused in 9 cases of serious nature. Considering the criminal antecedent of the petitioner, I am not inclined to grant bail to the petitioner. The same is dismissed. The District Judge Patna is directed to get the trial of all the cases registered. District Judge Patna and Nalanda are directed to get the trial of all the cases registered against the petitioner expedited. Cases, the following cases कर देना, डिटेल दे देना. Facts to District Judge Patna and District Judge Nalanda. Serial number 19, Mr. Sanjay Kumar. Yes, what is the case? 6A of IPC, my lord, letter on 8 section 8 of the POCSO Act added mine. What is the age of the girl? 16 बरस 7 महीना FIR में लिखा गया. Let me see the statement of the victim. My lord, yes. I am seeing it. Please don't repeat. Love affair. अरे पढ़ने दीजिएगा. मेडिकल में क्या एज आया है? मेडिकल में यह 15 से 17 बरस. अब मेडिकल में हुजूर कोई सेक्सुअल असॉल्ट का ही नहीं है हुजूर, कोई असमर्थ. Why did you fall in love with a minor girl? What is your age? 23 my lord. And what is your antecedent? No antecedent my lord. क्या करते हैं आप? हम हुजूर ITI किए हैं. ITI का परीक्षा उस दिन था हुजूर. लड़की घर से ही जाके हुजूर बयान दी है, रिकवर फ्रॉम हिज ओन हाउस. Considering prosecution case लिख लेना उसको. The girl है in her statement made under section 164 CRPC accepted the fact that she was having an affair with the petitioner and there is no allegation of any sexual act against the petitioner. Bail. कब से जेल में है? 30/11. He is in custody since such and such. Bail. 30/11/2022. Serial number 20, Mr. Ajay Kumar Tiwari. Yes. एलिगेशन है तिवारी जी. एलिगेशन सस्पिशन है जो अर्लियर उसमें जो डायरी और ट्रायल कोर्ट का स्टेज मांगा गया था, क्योंकि चार्ज फ्रेम हो गया और 2 विटनेस की एग्जामिनेशन हो गया. कितना चार्जशीट में विटनेस हैं? सूचिका एवं चिकित्सक का साक्षी संपूर्ण पूर्ण आरोप परीक्षित क्या है और कितने गवाह हैं? चार्जशीट में आपके पास चार्जशीट नहीं है तो क्यों बेल फाइल करते वक्त आप लोग पूरा काम क्यों नहीं करते हैं? एलिगेशन क्या है? आप पर सस्पिशन है. कब से जेल में है? जेल में है जो हम 14/3/19. 14/3/19. कोई आगे पीछे. अब एक मिनट.
the petitioner is suspected to have killed the deceased. He is facing trial. The petitioner is, she hai. She is facing trial. She is in custody since 14/3/2019. In the trial, only 2 witnesses have been examined. Next. The accused has also a right of speedy trial. Considering the period of custody, this application is allowed. The petitioner is granted bail. The petitioner will cooperate in the trial and will not absent herself on the dates on which witnesses appear for examination. She will appear either through her lawyer or herself. With the aforesaid direction, this application is allowed. माने जो भी है. Serial number 11. Yes. What is the case? वही वाला है. 376. क्या था? है कि रोड से पकड़ के अपने रूम में, किराए के रूम में ले गए, वहाँ रेप कर. कहाँ था का केस है ये? जक्कनपुर. क्या है ये? कौन है? क्या करते हैं ये पिटिशनर जो हैं? क्या मटेरियल आया है? मटेरियल आया है तो नहीं, इनका माने चार्जशीट हो गया है. 304 बी में भी अक्यूज थे. हम है बेगूसराय के एक्चुअली. हम मिठाई की दुकान में काम करते थे, ये भी काम करते थे. हाँ, इनका कहना है कि मिठाई के दुकान में काम करते थे. वो महिला जो है वो वो भी काम करती थी मिठाई के दुकान में. में भी आया है. तो आप उसको पकड़कर अपने कमरे में ले गए, रेप कर दिए. यही एलिगेशन है. आपको भी यही मिला. गवाह लोग यही कुछ बोला है. यही बोला है. महिला ने क्या बोला? महिला का स्टेटमेंट है 164. हमको दिखा दीजिए. 33 आराम से हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं. पाँच है. उससे पहले एक और एफआईआर हुआ था मारपीट का. नहीं, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? एक है 12/20 में. 12/20 में सप्लीमेंट्री के करीब से 12/13 में. देखें, अगर मेडिकल अलग से है तो दे दीजिए. 12/20 में 12/20 मेन केस है.
और सप्लीमेंट्री मेडिकल 13 में सप्लीमेंट्री केस डायरी सप्लीमेंट्री आप दिए हैं हमको, उसी में है। हाँ हाँ, पैरा 13। वो पेंट है, जरा अच्छा है क्या? पहले से अभी थोड़ा रुक जाइए। रेप के बारे में फाइंडिंग नहीं है डॉक्टर का? लास्ट इंक्लूड किया गया है सर, साथ में वहाँ कोर्ट में चला गया, चार्जशीट हुआ तो नहीं, हमको तो नजर नहीं आ रहा है। कहाँ उसमें लास्ट में उन्हें लिखा हुआ है क्या? नोट में नीचे वाला नोट ओरिजिनल पैथोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रिपोर्ट इज अटैच्ड। वो फोटोकॉपी है क्या? Heard the learned counsel for the petitioner, learned counsel for the state, the SHO कहाँ के हैं? Jakkanpur and the IO of the case have appeared with the case records. The allegation against the petitioner is of committing rape with the victim informant. During investigation, the police has found the case to be true against the petitioner on the basis of the evidence brought on record, including the detailed statement of the victim recorded under section 164 CRPC, in which she has stated as to how the petitioner committed rape upon her. Stop. The defense of the petitioner is that the petitioner and the victim were working in a sweet shop, and therefore the victim had a sexual relationship with the petitioner has not been supported by in evidence by witnesses during investigation, examined during the investigation. At this stage, the statement of the victim, which is a detailed one, is sufficient to reject the prayer for bail of the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. आइए, पत्रकार नगर कहाँ है? सीरियल नंबर 14। अभी जो रिजेक्ट किए पत्रकार नगर कांड था, जक्कनपुर था। आइए, आपका भी हाजिरी बार बार लग रहा है। क्या है ये केस? हाँ बोलिए वकील साहब, क्या है? आर्म्स एक्ट का है। आर्म्स एक्ट का है, और साथ साथ जो आपका जो पूर्व चरित्र है 395 में 2 केस में हम एक्यूज हैं लोग। ये आपके एरिया में क्राइम करते हैं खाली की और जगह भी करते हैं? सिर्फ पत्रकार नगर ही इन्होंने चुना है? ये तीसरा केस है। एंटीसीडेंट इनका पता और नहीं चला है क्या? हाँ, नहीं, अभी तो जो इन्होंने लिखा है 2 केस, पत्रकार नगर 482 2022 395 का है, 469 2022 395 का, और अभी अरेस्ट हुए हैं पत्रकार नगर 472 ऑफ 2022 आर्म्स एक्ट। नहीं लॉर्डशिप, हम पकड़ाए हैं दूसरे केस में, इसमें रिमांड हुए, वो तो अच्छी बात है, रिमांड ही होंगे। आलमगंज के हैं।
तो आप लोग इनका स्पीडी ट्रायल कराएंगे? Heard the learned counsel for the petitioner and the learned counsel for the learned APP for the state, Sri Harkhandi Upadhyay. The officer in charge of Patrakar Nagar police station along with the IO of the case have appeared. The petitioner is considering the serious cases in which the petitioner accused, that is, he is accused in other cases of dacoities, and all the cases are registered in Patrakar Nagar police station. I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The district judge Patna is directed to get all the cases, including the present case registered against the petitioner, tried in one particular court, so that the trial of the cases is concluded at the earliest. The SHO of Patrakar Nagar police station will approach the district judge Patna for speedy trial of the cases against the petitioner. If such an effort is made by the SHO Patrakar Nagar, the district judge Patna will see to it that all the cases registered against the petitioner are transferred in one particular court, and the trials of all those cases is concluded at the earliest. The facts to district judge Patna. ट्रायल कराइए और हमको बताइएगा 2-4 महीने बाद कभी किसी केस में आइएगा तो। क्या नाम है इसका? सूरज कुमार, उर्फ नाम कुछ नहीं है आपका, पटना सिटी के क्रिमिनल्स का एलियस लंगड़ा लूला रहता है। सूरज का क्या एलियस नाम रहता है ना? हैं? सूरजा नाम है। देखिए आपने पूरा नाम लिखा नहीं सर। हमारे यहाँ एक जोली शर्मा डकैती हुई थी, उसमें सर वो मेन रोल में था। एक और केस है ना? तो आप सब केस, और हम तो कहेंगे कि आप जरा बाकी थानों से इनका हिस्ट्री मंगा लीजिए, अपने एसएसपी को कहिए, और अपने एसएसपी को ये भी कहिए कि क्राइम कंट्रोल एक्ट किसके लिए बना है। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाइए। आइए 13 में, सीरियल नंबर 13। चलिए नेक्स्ट बोलिए क्या है। जो 302-34 इसमें है, और द एलिगेशन है रात में 11:30 बजे हम बुला के लेके गए इनको काम करने के लिए, उसके बाद ही वापस आ गए। फिर रात के 2:30 बजे अपने घर से निकलते कहते हैं कि जाके हम उनसे पैसा लेके आएंगे। जो रात के 2:30 बजे पैसा मांगने का, उसके बाद जो इसमें इंडिपेंडेंट फिटनेस का भी स्टेटमेंट आया है केस डायरी में, जो कि है पैराग्राफ 78 में। उसके बाद जो कल पूछा गया था कि आपके दुकान के बाहर वाला पोल में बांध के मारा गया था, नहीं हुजूर, चौहद्दी है डायरी के पैराग्राफ नंबर। क्या है, आईओ है कि एसएचओ है? आईओ का। अच्छा, आप कहाँ, किस थाना से हैं? रूपसपुर। हाँ बोलिए, केस के बारे में बताइए, क्या मटेरियल आया है? मटेरियल एविडेंस है सर, इसमें आई विटनेस का भी इसमें वर्णन किया गया, पारा नंबर 78-29। एक पेन ड्राइव भी का मतलब एक फुटेज 1 मिनट का है, उसमें भी उसमें फोटो आ रहा है। ये लोग सब मिलके उसको मारे, और उसमें पिटिशनर भी था। पिटिशनर का भी आया फोटो, इसमें नाम दिया गया। देखिए वो आई पेन ड्राइव के बारे में आपने उस पैरा में क्या लिखा है आईओ ने? लिखा गया सर, कांड के बाद में शोभा देवी थाना पर उपस्थित घटना का वीडियो पेन ड्राइव में उपस्थित की, जिसका क्या हुआ कि वीडियो में शंकर राम, दूसरा संजीवन दास, तीसरा राम जन्म उर्फ मियाँ जी, चौथा सनी कुमार उलंगड़ा मारपीट कर रहा है, तथा वहाँ पर किरण देवी खड़ी होकर अपने पुत्र से पिटवा रही है। पेन ड्राइव में मृतका का फोटो भी। ये सुनील किरण देवी का बेटा है? कौन है? सुनील कुमार अलग आदमी है। कौन है? एक्यूज हमको इसीलिए बनाया गया क्योंकि हमने इनको रात के 11 बजे काम करने के लिए बुलाया था। आई विटनेस में सर 78 और 79 है सर। हाँ, उसमें क्या आया है सर? 78 पढ़ दीजिए। राजकुमार का बयान है सर। राजकुमार
पिता दिनेश प्रसाद सागिन रूपसपुर जिला पटना से बताया गया कि पूछताछ में मंदिर से उतर कुछ दूरी पर मैं ठेका लेकर घर बनवा रहा हूँ। मेरा इधर उधर लगातार घर बनाने का कार्य हो रहा है। इन्होंने अपने बयान में बतलाया कि मैं सुबह सुबह जब अपने साइट पर जा रहा था तो यहाँ पर घटनास्थल भीड़ लगी थी। मैं भी रुककर अपने देखने लगा तो देखा कि बिजली के खंभा मार रहा है। तभी मैं मना किया तो लोग मुझे भी गाली गलौज करने लगा तो मैं साइड हो गया। वे लोग बोल रहे थे कि क्या लड़का चोर है और महेश राम को टोटो सुनील दास का ठेला लेकर भाग रहा था, जिसे एवं महेश की पत्नी मिलकर पकड़ लिया। बिजली के खंभे बांध कर रात से ही पीट रहा है। जिस समय मैं घर पहुंचा तो उस समय राम जन्म एवं महेश का बेटा लंगड़ा सन्नी डंडा से बेरहमी से मार रहा था। तभी वहां पर संजीवन दास आए और राम जन्म को हटाया तो महेश राम एवं उनकी पत्नी एवं बेटा लंगड़ा सन्नी संजीवन दास को मारने के लिए दौड़ा और रस्सी नहीं खोलने दी तथा वे लोग बोल रहे थे कि ये लोग बाहरी हैं इसीलिए इसको बचा रहे हैं। इसके घर में चोरी होता है तो ये लोग बचाने के लिए नहीं बोलता है। उसके बाद मैं तथा संजीवन दास मंदिर के ऊपर चले गए जहाँ घर का निर्माण कार्य चल रहा था। इस घटना में कौन कौन लोग संलिप्त थे कुछ ने बताया कि जिस समय मैं आया था उस समय राम जन्म एवं महेश का बेटा लंगड़ा सन्नी ही मारपीट कर रहा था। इससे पहले कौन कौन मारा मुझे पता। और फिर आगे अगला एक और है सर आई विटनेस सुभाष ठाकुर का है जिसमें देखिए सुनील का नाम है कि नहीं सर। सुनील कुमार दास उतारी हो जाती घटना में स्वामी शंकर संजीवन इसमें सर पढ़ दिया जा रहा है सर। ये घटनास्थल पहुंचे तो राम जन्म उर्फ मियाँ जी और महेश का बेटा लंगड़ा डंडा से बेरहमी से मार रहा था। जो भी मना करता था उसे महेश राम की पत्नी लड़ने के लिए उतारी हो जाती थी। घटना में शामिल शंकर राम अर्जुन राम संजीवन रविदास सुनील कुमार महेश राम की पत्नी किरण देवी महेश राम सन्नी कुमार उर्फ लंगड़ा। राम जन्म के बारे में पूछा तो बताया कि जिस समय मैं वहाँ पर था उस समय राम जन्म उर्फ मियाँ जी सन्नी कुमार उर्फ लंगड़ा पोल में बंधे हुए लड़का को मार रहा था तथा सुनील कुमार महेश राम का पत्नी वहाँ पर खड़ी थी। तीनों और मारने के लिए बोल रहा तथा शंकर राम अर्जुन राम संजीवन रविदास को मैं वहाँ पर नहीं देखा। सबको हुजूर मारते हुए किसी ने नहीं देखा और न ही हमने एक भी थप्पड़ मारा। लड़का चोरी कर रहा था, चोरी कर 2:30 बजे रात में पहला तो हुजूर चोरी कर रहा था तो मार दीजिएगा। तो हम कहाँ मारे हुजूर? नहीं, इंटायर केस डायरी में इंडिपेंडेंट विटनेस का सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी डिलीट हो गया है क्या? आईपीसी से दम नहीं डिलीट हुआ है हुजूर। तो फिर तो आप पर एलिगेशन 302/34 का है। आप जब ये विटनेसेस गए तब बाकी एक सेक्शन ऑफ लोग मार रहे थे, आप खड़ा होकर पहले पीट चुके थे, बाकी लोग हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, आसपास के सब लोग हाथ साफ करते हैं। आप थक गए पीटते पीटते तो दूसरा आया पीट रहा। आप चोर को मार दीजिएगा। एकदम नहीं हुजूर, एकदम इनह्यूमन घटना है, एकदम इनह्यूमन। हम अभी इन्हीं की बात मान रहे हैं कि वो चोर था। नहीं चोर नहीं हुजूर। हाँ नहीं इनकी बात फॉर द टाइम बीइंग हम मान रहे हैं। हम चोर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी बात मान रहे हैं। आई एम एक्सेप्टिंग हिज आर्गुमेंट फॉर द टाइम बीइंग दैट ही वाज अ थीफ। What gives them the right to kill him? Definitely, my lord, no one has the right to kill anyone. लेकिन हुजूर इन द एंटायर केस डायरी अगर एक आदमी का भी स्टेटमेंट हो कि उसने हमको मारते हुए देखा है, एक थप्पड़ भी अगर हमने मारा है हुजूर, देन आई एम आउट ऑफ दिस कोर्ट। यस, क्या बोल रहे थे नरेंद्र बाबू? सुनील कुमार दास पिटिशनर के यहाँ इसका पैसा बाकी था, इसने गया मांगने के लिए। उसके बाद पिटिशनर जो है सो गया इसको फर्दर दूसरा काम करने के लिए, तो बोला कि पहले पैसा आप हमको दे दीजिए तब हम दूसरा कोई काम करेंगे आपका। तो वो मना के ले गए कि सबका पैसा तुम चलो काम कर दो, सारा पैसा तुमको जोड़ करके दे देंगे। उसके बाद जब वो गया काम उम कर दिया, करने के बाद पैसा नहीं दिया, फिर वो 2 बजे रात में लौट आया। फिर 2-2:30 बजे गया, अपने मदर से बोला, मदर या उसकी जो मौसी लगेगी, बोला कि तो हम जाते आज पैसा लेके ही आएंगे। तो 2-2:30 बजे रात में फिर गया। उसके बाद से ये घटना घटी थी। पिटिशनर खुद लेके गया। और कुछ पैराग्राफ 17 में हुजूर वीडियो क्लिप का जो
कहा गया। और कुछ उसमें भी हुजूर कहीं पर हम नहीं। ठीक, घटना एकदम इनह्यूमन है, लेकिन इनह्यूमन घटना में हुजूर petitioner has got no role to play in that. In this case, a specific and direct allegation. let him argue. You have completed your argument. Prosecution case. Heard the learned counsel for the petitioner and the learned counsel for the state. Learned APP for the state, Sri such and such. The police officer from Dupaspur police station has assisted the court, assisted the learned APP along with the case diary. नरेंद्र सर कुमार लिखते हैं कि प्रसाद लिखते हैं? कुमार सिंह. There is no dispute that the deceased was tied in a pole and was assaulted by the accused persons, including the petitioner and his family members. The petitioner submits that he was a thief, whereas the prosecution case is that the deceased has gone to demand his wages, outstanding wages, and instead of paying the outstanding wages, he has been brutally assaulted by tying him in a pole, जो भी है, in the electric pole, and after brutal assault, he was killed. There is direct evidence of the participation of the petitioner in the killing of the deceased, in the brutal killing of the deceased. I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. petitioner and his family member लिखवाया गया। महेश की wife, महेश राम हमारा family member। ठीक है, petitioner कर दीजिएगा। another accused। My Lord's pleasure। 12,000 घूस में 12वां महीना से जेल में बुला के लाए हुजूर नीचे थोड़ा। क्या है 12,000 घूस लेते हुए 12वां महीना से जेल में। हम बिजनेस के लॉयर को रिक्वेस्ट किए हुजूर हमको भी बाहर 12,000 में 12 महीना से आप जा सकते हैं। अब आपका काम हो गया। 12वां महीना से अपने सीरियल पर है। फाइल के लिए Whether you have the consent of all the Mr. Bhola, all other lawyers waiting for their cases. सबसे हाथ जोड़। नहीं, हाथ जोड़ने से नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर देगा तो नहीं, अदरवाइज नहीं। और व्हाट इज द हरी? नेक्स्ट वीक में होगा। नो आउट ऑफ टर्न इन वेकेशन। घूस लिया है तो जेल में रहेगा, 12,000 हो या 12 लाख हो। क्या है आप पिटिशनर? कंपनी है, जूनियर इंजीनियर है हुजूर। इस डिपार्टमेंट में NHI का कौन? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बॉडी है उसके हैं। कौन सा? रेगुलेटरी बॉडी नहीं है हुजूर। साउथ बिहार। हाँ, कहता है कि पोल को लगाने के लिए लोग घूस मांगते थे, ऐसा करता है। उसके अगेंस्ट में हम कंप्लेंट वगैरह दिए हैं। पोल लगाने के लिए, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ये आप लोग लेते ही हैं, तो आप कुछ दिन रहिए बेऊर में, अपना बिजली ठीक करिए। हम नहीं है हुजूर। रहिए वो उस पर बेऊर जेल का बिजली ठीक कीजिए। उसके अगेंस्ट में हम किए थे कंप्लेंट। अरे वो सब कोई कंप्लेंट नहीं चलता है। जो भी घूस लेता है वो फिर कंप्लेन कर देता है कंप्लेनेंट पर और बोलता है कि हम तो उसका कोई काम पेंडिंग ही नहीं था। दिस इज द जनरल। ये कितने दिन से कस्टडी में है? कितने दिन से कस्टडी में है? 6 महीना हो गया। 6 तो 6.5 महीना बाद हियरिंग हो जाएगा आपका। नो मिस्टर अनिल सिंह, you should not give consent to in these type of cases. बोले मेंशन करेंगे तो Please go and enjoy your vacation. Yes, next case कौन सा है? नंबर 21 मिस्टर रमेश कुमार सिंह केरवाल साहब को बस का। हाँ, क्या है केस? 302 में हस्बैंड है। 302 में हस्बैंड है। कब शादी हुई? डेट ऑफ मैरिज 7/7/2014 और डेट ऑफ मर्डर 12/6/2022। कितने दिन में मरा? 7 साल के अंदर? 7 के बाद। क्या करते हैं आप? लिबरल है।
कैसे, क्यों, पत्नी को कैसे मार दिए, क्या एलिगेशन है? इन्फॉर्मेंट इज नॉट आई विटनेस। ये कहती हैं कि पत्नी को मारे पीटे सब कोई मिलके और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए जला दिए, जबकि फैक्ट ये है कि एक्सीडेंटल डेथ है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? घर में, मेरे घर में हुआ। आपके घर में हुआ? कैसे मरी? खाना बनाते हुए? आपके घर में या पूरे बिहार के हिस्ट्री में डॉटर इन लॉ के अलावा ननद मरी है कभी खाना बनाते हुए? खाना कहाँ बनाती है? तो फिर बनाती है, वो चाय बनाती है ननद। शादी जब कभी कोई ननद का डेथ हुआ है, एनी फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज नॉट ए डॉटर इन लॉ हैज शी मेट एन एक्सीडेंटल डेथ व्हाइल कुकिंग फूड? ये घर में अकेली थी उस समय हुजूर, और मेरा प्रेयर सिंपल होगा हुजूर कि इसको, और मेरा प्रेयर सिंपल होगा कि हम तो ऑर्डर करेंगे ही आज, अपीयरेंस स्लिप उनका भी दे दीजिए। योर पे मास्टर हेयर। हुजूर हाई कोर्ट में तो आना बंद है। हाँ बस ठीक है। हाँ, और जन डायरी मांगा गया था, हाँ, पोस्टमार्टम देख लिया जाए। क्या जो भी जला है वो आपका हाथ जला उसको बचाने में? हम थे ही नहीं घर में। किसी का हाथ जला? घर में कोई, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपका नौकर कोई था? माँ, पड़ोसी, किसी का हाथ जला? पड़ोसी का तो कोई एविडेंस ही नहीं है। वो कोई तो रहा होगा, वो अकेले आग लगा ली और आसपास कोई नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं हुजूर, एक लाइन का। हाँ बोलिए। लिया जाए, माँ बाप कबीरपंथी संत हैं, वो लोग घर से बाहर थे। हस्बैंड वाइफ केवल घर में रहते थे। हस्बैंड काम पर गया। कहाँ? कितनी दूर? 6 किलोमीटर दूर हुजूर। आग लगने के बाद आपने सूचना पर हम आए हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म किया, अपने ससुराल वालों को इन्फॉर्म किया? ससुराल वाले को इन्फॉर्म किस मोबाइल फोन से, किस नंबर पर किया? मोबाइल फोन से। ये इन्फॉर्मेंट खुद भी एक्सेप्ट कर रही है कि पड़ोसी ने फोन किया। पड़ोसी ने फोन किया? पड़ोसी के मोबाइल फोन से आपने किया अपने ससुराल को एक्सीडेंटल की हमारी पत्नी का? हमारा ये सीन थोड़ा ही रहा होगा हुजूर कि हम माने इन नॉर्मल केस में, नॉर्मल कंडक्ट है कि घर में अगर कोई एक्सीडेंट होगा, द रिलेटिव्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय यू एट लीस्ट, और बाय माय। नो 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 नो, यू आर ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म एट लीस्ट द पेरेंट्स ऑफ योर वाइफ। ये तो हुजूर का कहना नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म किया गया है तभी तो सेम डे आई है हुजूर। और पड़ोसी किया, गांव वाला किया, और आप मार कर लेबर का काम कर रहे हैं। वो पड़ोसी का स्टेटमेंट। बस बस रमेश बाबू, और कुछ? कब से जेल में हैं? जेल में हुजूर 16/6/2022 से। वो भी आपके पक्ष में नहीं है? पक्ष में तो हुजूर सब है हुजूर, अगर पक्ष में माने तब ना हुजूर। हम 302 का है, इसमें प्रिजम्पशन नहीं आएगा हुजूर। अभी जब उस साइड थे तो यही पक्ष वाला बात बहस करते थे, लेकिन अब इधर आ गए। वही तो सीखे हैं हुजूर। हाँ सीखे हैं, तो अब बदलिए। हम लोग उधर नहीं आए हैं हुजूर। Heard the learned counsel for the petitioner and the learned APP for the state, वो सब लिख दो। The petitioner is the husband of the deceased. It has been submitted by the learned counsel for the petitioner that the deceased died in an accidental fire. So he has not been able to satisfy this court as to what actions he had taken for the treatment of the deceased, whether he had informed the family, his in-laws family, just after the accident, or he had informed the police that the wife had got was burnt in an accidental fire. Considering the aforesaid, I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. Some time maybe. Every 6 months you can try your luck. But हुजूर हम every 6 months हुजूर को कन्विंस नहीं कर पाए at this at least at this stage, at this after my retirement, if the trial is not concluded. हाँ बोलिए क्या है? मिस्टर रमाकांत यादव,
मतलब सीनियर काउंसिल ऑन लेग है। और आप कौन से काउंसिल हैं? 498 का क्या एज है लड़की का? 498 में सीनियर चले जाएंगे और आप पॉक्सो में आप रहिएगा। लड़का हाँ तो जब उसमें क्या होगा, कोर्ट देखेगा। आप चलिए आप बात कीजिए, लड़की का एज क्या है? कौन है सीनियर काउंसिल? शिवेंद्र कुमार सिन्हा सीनियर डेजिग्नेट हो गए। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए क्या है लड़की का एज? FIR में तो पायलट 16 वर्ष एज है। और लड़की को क्या किया आप? 164 हुआ लड़की का। क्या आया? रुक जाइए, मेडिकल में क्या आया? अच्छा आप चुप रहिएगा, जब आपके पास कुछ है ही नहीं और आप बहस करना चाहते ही नहीं तो चुप रहिए। जेल में कब से हैं? उन्नीस 5/22। अब पुलिस चार्जशीट पॉक्सो एक्ट में नहीं किया हम लोग। चार्जशीट नहीं किया, लेकिन पॉक्सो एक्ट में कॉग्निजेंस हुआ। FIR पॉक्सो एक्ट में द इन्फॉर्मेंट इन द विक्टिम गर्ल इन हर स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164 CRPC हैज not alleged anything against the petitioner considering the period of custody and the statement of the victim girl. This application is allowed. Next. देख लेते। हाँ इसके बाद कॉल कीजिएगा। हाँ बोलिए क्या है? 302 है हुजूर। एडमिटेड हुजूर, इन्फॉर्मेंट आई विटनेस नहीं। घटना है 7/8/22 को 12:30 बजे रात को। FIR होता है हुजूर सुबह, शाम में 6 बजे FIR होता है। केस नंबर 18 पे FIR। आशिक नहीं गोली मारा। FIR में है हुजूर, लेकिन आई विटनेस नहीं। तो इसको मालूम कैसे चला इन्फॉर्मेंट को? नहीं कहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। FIR कहते हैं जमीनी विवाद के चलते। हाँ हाँ ठीक है, जमीनी विवाद के चलते। क्या बोलिए इन्फॉर्मेंट? स्पेसिफिक है कि ये गोली कैसे? आप आई विटनेस नहीं है। हु हैज इन्फॉर्म्ड यू? विलियर्स लोग बोले कि वहाँ जो है हुजूर कोई विटनेस का गवाही आया है? 70, 71, 72। क्या है 70 में? क्या है पढ़िए। कहते हैं कि वहाँ पर अशरफ, मोहम्मद अशरफ और ये आदेश दिए हैं, पढ़ देते हैं। पूर्व जमीनी विवाद को लेकर मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद असगर के कहने पर मोहम्मद आसिक अपने हाथ में लिए पिस्टल से मोहम्मद कुर्बान का दाव पर गोली चला दिया। ऊपर क्या पूरा पढ़िए ऊपर से। नाम पता के बाद क्या है? तजिया खेलकर देख रही थी। खेल समाप्त होने पर मोहम्मद कुर्बान तजिया खेल कर अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में 12 नाम है हुजूर। सभी
हमारी एकजुट होकर घेर लिया और पूर्व के जमीनी विवाद को लेकर मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद असगर के कहने पे मोहम्मद आसिफ अपने हाथ में लिए पिस्टल से मोहम्मद कुर्बान को नदाब As per the eyewitness statement, the petitioner is the assailant of the deceased. तो पहला है वो जो उसमें 2 आदमी का नाम दे रहे हैं, तो वो भी लोग भी आई विटनेस अपने को क्लेम कर रहे हैं 73 या 72 में। अब राय जी मर्डर हुआ है, मरा है, उसके फैमिली का भी सोचिए। Considering the same, this application is dismissed. The trial is directed to be expedited. Modified case. ये कैसे हो गया? इसमें स्टे कहाँ, इशू नोटिस कौन है? रंजीत कैसे सुन करता? इट हैज बीन इन द ऑर्डर डेटेड 19/5/2023 on 19/5/23 the court had stayed the further proceedings of गुथनी PS केस नंबर 126, नहीं वो आप किस में अक्यूज हैं, 125/2023 and had directed that the petitioners that the accused persons of Guthni PS case number 125 of 2023 shall not be arrested during pendency of this petition. This part of the order has not been typed due to mistake. It is directed, फिर वही कर दो, ठीक है। The order dated 19/5/23 is modified to the extent indicated above. क्या? आज प्रोनाउंस हो जाता है। अभी साइन कर सकता। हाँ, नेक्स्ट केस बोलिए क्या है? आप कौन? मैरिड ननद है। मैरिड ननद। कब हुआ शादी इसका? डिसीज का शादी कब हुआ? FIR के अकॉर्डिंग हुजूर कहते हैं कि 4 साल पहले शादी हुई। गवर्नमेंट डिसीज के फादर हैं। 4 साल पहले शादी हुई, 2 लाख रुपये की डिमांड के लिए कहते हैं कि मार। कब से जेल में हैं आप? सरेंडर किए हुजूर, जैसे ही पता चला। अरे न, जेल का डेट बताइए ना, तो कैसे किए? हिस्ट्री बता रहा है। 7 फरवरी 2023, 4 महीने। Petitioner is the married nunad and is in custody since 7/2/2023. Bail. Next. Serial number 25. बोलिए क्या? नॉट नेम्ड है, कन्फेशन पे नेम आया हुजूर। कहाँ लूट कर रहे थे? नालंदा का केस, एक ही दिन में 3 केस हमको रिमांड कर दिए हुजूर। एक केस में पकड़ाए, मोबाइल चोरी का केस। कहते हैं कि हमारे मोबाइल चोरी हुआ है, उसमें मेरा नाम का सीन था, जबकि हम जेल में 17/7 से थे दूसरे केस में हुजूर। उसके बाद रिमांड हुआ। अदर सिमिलरली सिचुएटेड हैव बीन ग्रांटेड बाय योर लॉर्डशिप इटसेल्फ। ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं हुआ, लेकिन स्टेटस में हुजूर आ गया। यही ऑर्डर कर लीजिएगा। हम आईए फाइल किए थे, इसका जनेऊ है हुजूर 29 तारीख को। बहन का भी शादी है, इसीलिए। नालंदा में जनेऊ बूढ़ा होने पर होता है, बहन के शादी के साथ नहीं होता है। तो हम लगा दिए कार्ड। नहीं, वो सब नहीं। मोशन बेंच में हम किए थे, इसीलिए आया है हुजूर। इसको काइंडली हुजूर देख लो। ये केस का भी साइन करा लेना आज, और इसका भी। ये कल कब है जनेऊ? 29 को हुजूर। कल तक करा लेना। आप याद दिला दीजिएगा इन लोगों को। Serial number 26 file is not available. Serial number 27 Mr. Dilip Kumar. यस। कहाँ? पटना सिटी का है, भागलपुर का है, बांका। 100 ml का 4 लीटर कप सिरप पुडिंग है हुजूर। 4 लीटर 100 ml का? 100 ml में टोटल 2 आदमी हैं हुजूर। हमारा गाड़ी नहीं है, हम डायरी भी और गाड़ी हुजूर। और हम आप वहीं पकड़ाए हैं ना? और ये कौन सा है? नंबर 27। ये अमरपुर पुलिस स्टेशन। कब से जेल में है? हम जेल में हैं हुजूर 20/1/23 से। और आप तो पहले भी यही इसी सब टाइप के केस में अपीयर हो रहे हैं आजकल। कफ सिरप में ही रेगुलर ना, हम ये पहला मेरा केस है। पहला है हमारा, दूसरा रहता है 302। इसमें NDPS भी लगना चाहिए, जो नहीं लगाया गया। हो गया है ना। पैराग्राफ फर्स्ट पैरा में ही ना लिखना चाहिए कि चार्जशीट भी
एनडीपीएस एक्ट में सबमिट हुआ? बाद हुजूर हमारे पास किस सेक्शन में हुआ है एनडीपीएस में? हम पैराग्राफ 19 में लिखे 8B 22B 18। तो सेक्शन 37 लगेगा कि नहीं? बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर, क्या है 37? आई कम टू अ फाइंडिंग दैट यू आर नॉट अक्यूज, सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट लेके नहीं आए हैं। जैसे एनडीपीएस लग गया आपको सेक्शन 37 को ओवरकम करना होगा। क्या क्या है सेक्शन जिसमें चार्जशीट हुआ है? चार्जशीट निकालते हैं। एनडीपीएस एक्ट में हुजूर 8B स्मॉल b और 22B 18C 27B एनडीपीएस एक्ट अंडर सेक्शन 13A और बिहार प्रोविजन वेबसाइट बच गए। Apart from the offences mentioned in the IPC, the charge sheet has been submitted under section 8। वो आप किस पैरा में लिखे हैं? 19 में। पैरा 19 से ले लेना। The petitioner is in custody since हम हैं हुजूर 30 days। antecedent एक दूसरे सेक्शन का है हुजूर। he is not accused in any other case of Excise Act or the NDPS Act. Considering the above, this application is allowed. Bail हाजिरी लगाएगा। Next. Number 28. बोलिए क्या है? हाँ क्या है? कहे जो हुजूर 1 लाख रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर, ठीक है। कब से जेल में है? जेल में तो 10 महीना पहले थे। आजा रुकिए, तो अब ज्यादा कहानी करिएगा तो ऑर्डर रिकॉल भी कर लेंगे। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर देना और हाजिरी भी लगाएगा। तब में बेल हो गया, तब इसमें अभी रिमांड किया है। पुलिस बुद्धिमान हो गया है। नामों नहीं था। ठीक है, नाम नहीं रहता। मेन जो आदमी होता है ना एक्साइज एक्ट एनडीपीएस का, उसका नाम एफआईआर में नहीं रहता। हाँ बोलिए। एक्साइज में 4 एंटीसीडेंट है। बोलिए 766। कल वो कितना बोले थे आपको? हुजूर 50 बोले थे। तब देना है कि घर जाना है? हुजूर का आदेश होगा। वही कर दो 50 मुजफ्फरपुर। मधुबनी में है लॉर्डशिप। मधुबनी में है आश्रम? लॉर्डशिप हम तो पहली बार सुन रहे हैं। पता किए हैं तो कोतवाली चौक पर रामकृष्ण मिशन है, तो हमसे पूछ लेना तब। मुजफ्फरपुर / मधुबनी कर। हाँ लॉर्डशिप ऑब्लिक कर। मेरे नॉलेज में नहीं है मधुबनी। ऑब्लिक करके कर दिया जाए। मेरे नॉलेज में नहीं है। आपको किसने बताया? हमको लर्नेड कोर्ट बिलो के लॉयर से हम पूछे। लर्नेड कोर्ट बिलो के लॉयर से पूछे? नेट लर्नेड कोर्ट बिलो मतलब कोर्ट बिलो के लॉयर से। हाँ, तो आपने नेट पे देखा कि मधुबनी में कोई आश्रम है कि नहीं? पर सर्च नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऑब्लिक करके कर दिया। ऑब्लिक नहीं करेंगे, हमको पता चल जाएगा। अभी पूछ लेना हमसे। ठीक है, जो भी रहेगा मधुबनी में होगा तो मधुबनी, नहीं तो आपको मुजफ्फरपुर में बेल। वही आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और हाजिरी, ये सब रहेगा। Serial number 35 file is not available. Serial number 31 under heading for admission to. हाँ बोलिए क्या है? क्या एलिगेशन है? शॉर्ट में बहस कीजिए। अननोन पे हुआ है। हाँ, और कोई एक्यूज के कॉन्फेशन पे मेरा नाम आया। और आप पर पहले से केस है। बुद्धा कॉलोनी 302 का है, पाटलिपुत्रा में आर्म्स एक्ट का है। दोनों अभी फाइल किए हैं। नहीं फाइल तो किए हैं, एंटीसीडेंट तो आपका है। हाँ,
Annexure to एक मिनट, that the husband and the informant आपने कितना गोली चांद बच्चे में लगा उसको, डिसीज को लगा है, कितना? ये तो कहीं नहीं आया है। सीसीटीवी में आपका चेहरा आ गया का नहीं आया। अच्छा, आप चुप रहिएगा। बारिश आ गया क्या? डायरी है आपके पास? फाइल में डायरी नहीं है? ये कर दो। और क्या बहस है आपका, बताइए। 3 आदमी का बिल हुआ है। कहाँ है? लगाए हुए हैं। पेज 16 है बस। इसमें कहा गया था कि 4 महीना में अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है तो उन लोग को रिलीज करने। अच्छा ठीक है। वो जो है लॉर्डशिप ऑर्डर जो है। अब 1 मिनट रुक जाइए। आपका नाम भी कन्फेशन में आया है? Unknown criminals had fired indiscriminately upon the deceased and killed him. During investigation, materials have come to connect the petitioner with the crime as one of the assailants of the deceased. The petitioner has 2 antecedents. He is accused in a case under Section 3, one more case of Section 3 and registered under Section 302 IPC and another case of Arms Act. The trial of the case is to commence as the charges have been framed. Considering the aforesaid fact, that the deceased has been, क्यों मारा गया ये आया है? कन्फेशन में आया होगा ना? आया है लॉर्ड। ये लोग जो है 4 आदमी जो है मोटरसाइकिल से गए और माधुम गोलियां चलाने लगे। अरे क्यों मारने गए? कन्फेशन है आपके पास? तो डायरी नहीं है तो क्यों आए हैं आप यहाँ? जब कुछ है ही नहीं, वहाँ पुलिस पेपर आपको मिल चुका है, तब क्यों नहीं डायरी लेकर आते हैं? कन्फेशनल स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास। क्या लिखे? केस ऑफ ब्रूटल किलिंग ऑफ ए पर्सन इन द टाउन ऑफ पटना, आई एम नॉट inclined to, in which the petitioner's involvement has been found, I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial is directed to be expedited. Serial number 32, Mr. Praveen Ranjan. Yes. क्या है? टैक्स अध्यक्ष है हमारे। हाँ? टैक्स अध्यक्ष हैं। हाँ? माता जी कैसे पुलिस आई पूछने के लिए। हाँ। होने के नाते मैं गया जस्ट खाली पता करने के लिए कि मैटर क्या है। हाँ। इसी बीच में पुलिस मुझे ही उठाकर बंद कर दिया। क्या केस क्या? 302 और आप पर मटेरियल क्या आया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? 120B। अरे 120B नहीं, आपका 120B में क्यों लाया गया है? एक महिला का मर्डर हुआ है जी मैम, पांथू में।
A girl was killed and thrown away. When the police reached there, the petitioner was caught. He identified the girl and gave the name, parentage, and address of the girl. He has also confessed his guilt, and it has come during investigation that the petitioner along with others were involved in the killing of the young girl. क्या दिखाना चाहते हैं? वो लड़की को आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले आप ही ना पुलिस पकड़ा तो आपने बोला कि हाँ ये लड़की है जिसको हम लोगों ने मारा है। और on the statement of the petitioner, the Alto car has been also recovered, which was used in the crime. Considering the evidence materials available against the petitioner, I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. Trial is directed to be expedited. Next. Serial number 33, Mr. Pramod Kumar. 35 करके उठ जाएंगे। हाँ, क्या है प्रमोद जी? पटना सिटी का है। आपको देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है पटना सिटी का है। रोहित कुमार एलियस गोलू, कितने केस में आप अक्यूज हैं? रंगदारी मांग रहे हैं और मर्डर भी कर दिए, और मात्र आप पर केस है 6। एक एक्साइज एक्ट का, दूसरा 302, तीसरा 302, एक आर्म्स एक्ट, इतना जल्दी हो विड्रॉ करके ट्रायल करा लीजिए। तो आप भी बिल कराते हैं? हम अपीयर हुए थे। इसको ट्रायल को इसको कैसे करेंगे? अब आपने जो कह दिया कि हम इसके लिए अपीयर हुए हैं पहले, अरे उससे क्या मतलब? आपको तो मालूम है ना, आप सही बात बोले। नंबर 34 स्टेट केस में करा, दोनों का अपीयरेंस स्टेट का भी। यस, नेक्स्ट केस। हाँ बोलिए, क्या है संजीव जी? आम स्टेट का 414 लगा हुआ था मोटरसाइकिल, जो मेरा ऑनर बुक मेरे पास 414 अप्लाई मेरे ऊपर नहीं लगेगा। कहते हैं बिना नंबर प्लेट का मोटरसाइकिल है, जो नंबर बाद में पड़ा था, इसलिए हम ऑनर बुक का जो फोटो। केस डायरी सीरियल नंबर 35 नलिन कुमार। हाँ क्या है? है। लास्ट केस है मेरा। विपिन बाबू हो या कोई और बाबू हो? फाइल है नहीं तो हम केस के बाद। अरे 307 है क्या? किस चीज से मारा आपने? हम इसीलिए एक केस के लिए हम देख लेंगे, हम ही कर लेंगे जी देख के। अरे भाई आप करिए या कोई और करे, हमको उससे मतलब नहीं है। 14/11/22 से जेल में है। संदीप महतो ही नाम है आपका? फाइल हम देख नहीं पाए, नहीं फाइल। अरे बस ठीक है। इंजूरी एंटीसीडेंट देख लिया जाए। अरे देख रहे हैं आप, चुप रहिए ना। तो यही है, जब आपके पास कुछ नहीं है तो चुप रहिए। Considering the period of custody, this application is allowed.